क्वेश्चन बनेगा कि भारत में अवैध कब्जाधारी अभिकरणों एजेंट्स की भूमिका क्यों इतनी सक्रिय और सुदृढ़ होती जा रही है, तो क्वेश्चन बन जाएगा। क्या आप समझते हैं कि अवैध कब्जाधारियों को बिना पुनर्विस्थापित और बिना रिसेटलमेंट किए उनसे जमीन का हक छीन लेना न्यायोचित है? ये क्वेश्चन बनेगा। क्या माओवादी संगठनों का उभर बॉयज एंड गर्ल्स IAS एस्पिरेंट्स, वेलकम ऑन बिहाफ ऑफ प्रीसा IAS, that is IAS by the IAS. I always have been repeatedly saying that UPSC examination is not a rocket science at all. It demands your perseverance, it demands your hard working. Hard working means physical as well as mental, because in physical you will have to roam around the whole districts, you will have to roam around the various panchayat and this and that, and you will have to stay 1-2 nights in that area. ठीक है ना? So in that area, if you are visiting, in that situations you will have to eat and sleep in the villages, and you will have to face the challenges raised by mosquito by protecting your inside of nets. So such type of working, such type of scenario in your life you will face being a district magistrate. You will have to visit the flooded area, how people will facing, how people will be saved their life, all the arrangements of flood to be taken care in advance or during the flood. So this is a hard working, मतलब there is a requirement of physical work, physical energy is required, mental energy that is also required, because you will not be able to face the challenges. Whatever you have read in your book, that bookish knowledge will not be fulfill your challenges, because in that area you will have to become more and more practical. If you are facing any crowd at that moment, you will have to handle that crowd in a very tactically manner. You cannot handle as a being a magistrate or being a collector sort of thing. You will have to face, you will have to handle that challenge in a smooth and tactical manner. ठीक है ना? Tactfully you will have to handle. Otherwise you will be stuck in the problem and people will fire you, just like the case of Bihar DM Raghvaiya, 1996 something sort of. The bheed was very furious and crowd just surrounded his or her gadi and started pelting the stone. पत्थर फेंकने लगे, उसमें उनकी डेथ हो गई. So this is the crux of the service. You will have to more and more physical as well as mental and as well as empirical, है ना? आप ये तो नहीं कहेंगे कि एथिक्स की किताब में पढ़ाया गया था ऐसे, सब एथिक्स वहां धराशायी हो जाएगा. तो आपद काले जो है, जो धर्म है, आपद धर्म जिसे हिंदी में कहते हैं, वो आपको यूज करना पड़ेगा. एनीवे, तो ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन यू विल हैव टू always be alert from commodity market. मैं इसका नाम commodity market देता हूँ. जिस तरीके से बाजार में सब्जी भाजी बिकती है, वैसे ही यहाँ किताब कॉपी सब कुछ तौल के बिकता है. So you will have to keep yourself aside by the influence of that commodity market. जो बच्चा कल हमारे पास आया, उससे हमने पूछा कि कैसे क्वेश्चन हल करते हो. ये क्वेश्चन के 4 ऑप्शन है, तो तुम सोचते हो कि बी तो ऐसे है इसलिए नहीं होगा. तुमने कभी सोचा कि ये क्यों नहीं होगा? बोला ऐसा तो कभी सोचा ही नहीं, ना ऐसा कभी पढ़ाया गया. तो हमने कहा कि हाउ विल यू गेट योर सिलेक्शन अनलेस अनटिल यू आर नॉट अवेयर अबाउट दैट
ऑप्शन की व्हाई दिस ऑप्शन इज नॉट सुटेबल। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो आपको जो है ये छांटना पड़ेगा कि दिस ऑप्शन इज नॉट सुटेबल, देन व्हाई इट इज नॉट सुटेबल। समझ गए? गलत है तो कैसे है और सही है तो कैसे है। क्लियर है? तो यू विल हैव टू adopt such type of methodology during solution of the test series or sort of any question answer। एलिमिनेट नहीं करना है, ए नहीं होगा ये काट दो, बी भी नहीं होगा। अगर नहीं होगा तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट लॉजिक। क्लियर है? तो आपको ऐसे तैयारी का क्रम आपको बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है? और दूसरा कि मैं बार बार बोलता हूं कि जो क्वेश्चन में टर्म्स दिए हुए हैं, जो टर्मिनोलॉजी, वट एवर टर्मिनोलॉजी इज यूज्ड इन द फ्रेमिंग ऑफ क्वेश्चंस आइदर इन प्री और आइदर इन मेंस, दैट टर्मिनोलॉजी शुड बी क्लियर इन योर माइंड। तभी तो आप समझ पाएंगे क्वेश्चन को। अगर आप नहीं समझेंगे उस पार्ट को तो दिक्कत होगी ना, फिर आप आंसर ही नहीं लिख पाइएगा। तो now we are moving from this conceptual motivational strategically designed methodology। methodology means काम करने का मेथड और कुछ नहीं, इंग्लिश में मेथडोलॉजी बोल देते हैं। तो हम लोग कहाँ थे? ये तो हो गया था। हाँ, ये ओवरलैप क्यों हो रहा है? हाँ, अच्छा अच्छा, ये अच्छा अच्छा, ये ले जाओ इस पे 16वां। व्हाट आर इंडिकेटर्स, हाँ यही है। व्हाट आर इंडिकेटर्स, ये हट जाए बस। तो आ गया। इस पे क्या सावधानी रखनी पड़ेगी कि इधर नहीं क्लिक करना, बीच में करना। हाँ, इसको ये देखिए, क्वेश्चन है कि हाउ फार फंडामेंटल ड्यूटी एंड राइट्स आर को रिलेटेड विथ ईच अदर। यू आर अवेयर अबाउट फंडामेंटल राइट्स? ठीक है, सारे आर्टिकल लगभग लगभग समझ गए होंगे आप लोग। आर्टिकल 12 से 35, 35, 35। तो उसमें आपको क्या मिला? एक राइट ऑफ इक्वलिटी, राइट ऑफ इंडिपेंडेंस, राइट ऑफ राइट टू, देर आर 5 सेक्शन। फर्स्ट इज समानता का अधिकार, उसमें हो गया आपका 14 से कहाँ तक? 18। दूसरा क्या है? अधिकार 19 से 22, वेरी गुड। तीसरा क्या है? शोषण के विरुद्ध 23-24। उसके बाद 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता, वेरी गुड। उसके बाद हाँ, यस, हाँ, उस संवैधानिक उपचार, हाँ, बिल्कुल सही। तो राइट नाउ संपत्ति का अधिकार क्या बन गया है? लीगल राइट, कानूनी अधिकार, न कि फंडामेंटल राइट नहीं रहा। आपने कभी सोचा कि इसको ऐसा बना देने से किसको फायदा है और किसको नुकसान है? आप लोग कभी सोचे? नहीं सोचे तो आप सोचिए कि यार ऐसा किया गया कि संपत्ति का अधिकार छीन लिया गया, इसका मतलब क्या हुआ? इट मीन्स यू कैन नॉट गो टू द कोर्ट एंड कैन नॉट फाइल रिट पिटीशन। इतना ही तो हुआ। क्यों अमित?
इतना ही हुआ ना। तो उससे क्या फर्क पड़ा भाई, ठीक है रिट पिटीशन दायर नहीं होगा, यही फर्क पड़ा ना। और तो संपत्ति का अधिकार छीन लिया तो ऐसा तो नहीं कि आप संपत्ति कमा नहीं सकते, ऐसा तो नहीं है। आप अरबों खरबों कमा सकते हैं, लीगल मीन से टैक्स दे सकते हैं, और आप महासंख्य रुपया कमा सकते हैं, कोई प्रतिबंध नहीं है। तो क्यों संपत्ति का अधिकार हटाया गया, कभी सोचा पढ़ते हुए? कभी सोचना पड़ता है ना कि यार क्यों हटाया। तो हटाया इसलिए था क्योंकि मठों के पास बहुत सारी संपत्तियां थी। राजा महाराजा जो प्रीवी पर्क्स लेके चले आ रहे थे, उनके पास अथाह संपत्ति थी। तो संपत्ति के मामले में जो कानून बना, लैंड एक्ट बना, लैंड सीलिंग एक्ट, लैंड एक्विजिशन एक्ट, लैंड कंसोलिडेशन एक्ट, गांव में आता है ना चकबंदी वाला, देखे हो ना भाई, चकबंदी वाले आते हैं ना ब्लॉक से, देखे हो कि नहीं देखे हो तुम? वो आता है ना सब मालगुजारी वसूल लेने, अमीन भी आता है, सब गांव में जाता है भाई, मालगुजारी लेना होता है उसको, तो वो सब आता है ना। तो संपत्ति का अधिकार कुछ लोगों के लिए काफी ज्यादा मात्रा में था, क्योंकि वो राजा महाराजा के परिवार से चले आ रहे थे। मठों के पास, मंदिरों के पास बहुत संपत्ति थी, तो उसका समान वितरण हो सके, इसके लिए सरकार ने कहा कि संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं रहेगा, क्योंकि इससे जो है असमानता है समाज में, है ना। तो हाँ, तो क्या हुआ उससे कि अब आप जो है रिट पिटीशन फाइल नहीं कर सकते, इतना ही तो है। और लीगल राइट बन गया तो आप रिट पिटीशन की जगह पे क्या फाइल करेंगे, केस दायर कर देंगे, है ना, क्रिमिनल केस, ये आदमी मेरी संपत्ति छीन रहा है, आपराधिक मुकदमा दर्ज करा दीजिए। बिल्कुल है, उनसे पूछिए अमित बाबू से कि मठों की जमीन कितनी लोगों ने हथिया ली, उसको भी कुछ छे घेर लिया, तो उससे फायदा हुआ ना। जो असमानता थी वो जैसे हटाया तो लोगों ने कब्जा करना शुरू कर दिया, क्योंकि लैंड सीलिंग एक्ट के तहत आप 18 एकड़ से ज्यादा लैंड रख नहीं सकते, है ना। उनके पास पता नहीं 18,000 एकड़ था, तो लोगों ने छीन लिया। तो वो कहाँ जाएंगे शरण मांगने, कहाँ जाएंगे, कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएंगे। पहले कहाँ जाते, मिनिमम हाई कोर्ट, और उसकी प्रायोरिटी पे वो सुनना मजबूरी था, चूंकि रिट पिटीशन मौलिक अधिकार के उल्लंघन का मामला है, कोर्ट भी प्रायोरिटी में उसको ऊपर रख के सुनेगी। अब कहाँ जाएंगे वो, लीगल उपचार में, विधिक उपचार, कानूनी उपचार, जो 300 का बोला नहीं, उसमें एज ए लीगल राइट हो गया उसका, उसी के बेसिस पे लैंड एक्विजिशन एक्ट बना। तो अब आप सोचिए कि अब वो कोर्ट में जाएगा तो पूछेगा ना कोर्ट कि तेरे पास कितना जमीन है, वो कहेगा 2000 एकड़। अरे पगला गए हो, लैंड सीलिंग एक्ट में 18 एकड़ एक आदमी को रखना है, कितना परिवार का मेंबर होगा तुम्हारे, 10, तो 18 180 रख लो। लैंड सीलिंग एक्ट आया ना बाद में, आया लैंड कंसोलिडेशन, चकबंदी, हदबंदी, हिंदी में लैंड सीलिंग मतलब भूमि हदबंदी अधिनियम, लैंड कंसोलिडेशन मतलब भूमि भू चकबंदी, एक जगह सब करना। तो जब ये हटा दिया तो आप कोर्ट जाएंगे तो कोर्ट ये पूछ लेगा कि कितनी जमीन है, तो उसके अलावा कहेगा ना कि तुमने लैंड सीलिंग एक्ट का वायलेशन किया, कहेगा ना। इन दैट सिचुएशन जो कानून बना था कि आपको अपनी जमीनें जो है दान करनी है, उससे ज्यादा आप नहीं रख सकते, तो वो जमीन रिलीज हो जाएगी ना। आपके 1800 एकड़ में से 180 एकड़ आपके घर परिवार के जो भी 10 लोग हैं, 18 180 ले लीजिए, तो बाकी छोड़ना पड़ेगा, तो आपको कुछ नहीं मिला ना, वही मिला जो कानून में है। क्लियर नहीं है? तो यही तो क्वेश्चन बनता है कि लैंड सीलिंग एक्ट देश में क्यों सफल नहीं होगा।
और उसी के वजह से तो माओवादी और वो जो लेनिनवादी और ये सब जन्म लिए। इट इज ए फेलियर ऑफ यू एंड माइन, गवर्नमेंट एंड पब्लिक। पब्लिक मीन्स हुसोवर इज द होल्डर ऑफ दैट लैंड। कानून बना, आपने कानून का पालन नहीं किया। एकदम से कह देंगे कि 1800 एकड़ उसके पास था, 180 रख लो, तो वो अपनी खुद की मतलब संपत्ति को आपको क्यों दान कर दे? इसलिए दान नहीं, इसलिए दान करना पड़ेगा क्योंकि अब कानून है कि आपने जो जमीनें हथियाई थी अंग्रेजों के ज़माने में, वो आपके मेहनत से नहीं हथियाई गई थी। आप चमचे थे अंग्रेजों के, तो उसने आपको जमींदार का दर्जा और जागीरदार का दर्जा दे दिया। जमीन आपकी थी नहीं, जमीन किसकी थी? पूरी जनता की थी। अंग्रेजों ने आपसे छीन लिया और जो चमचे जमींदार जागीरदार थे उनको नियुक्त करके दे दिया कि तुम लोग मजा करो, रेवेन्यू कलेक्शन करो, अपने पास रखो, कुछ हमें दे दो। हिस्ट्री में जाइए ना। तो जो आज दावा करेगा कि मेरे पुरखों की है, तो उससे पूछिएगा ना कि पुरखों की है, कहाँ है बैनामा? कहाँ बैनामा? दिखाओ, कितने में तुम्हारे दादा परदादा खरीदे थे? सब। अरे भैया, तो मैं खुद ही कह रहा हूं कि है, कानून में प्रोविजन है ना ले लेने का, छीन लेने का। तो जो काम सरकार नहीं कर पाई वो माओवादी कर तो दिए। आप चीजों को कनेक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? आप कहाँ से शुरू हुआ? आपने बोला वो कहेगा मेरे बाप दादा की है, तो आप पूछिए तेरे बाप दादा ने पैसा दे के खरीदा था? कहाँ है सेल डीड? तो चुप हो जाएगा। तब आप कहिए ना कि तुम लोग बेसिकली अंग्रेजों के चमचे थे, जो इंडियन जमींदार जागीरदार और वही सब तो उनके लग्गू भग्गू थे, इंडियन ही तो थे। तो उन्होंने उठा के कहा है तेरी नहीं रहेगी, कल से इसकी हो गई। अब आप निरीह प्राणी की तरह बैठे हुए हैं, कुछ बोल भी नहीं सकते। तो इसीलिए लैंड सीलिंग एक्ट आया कि भाई जो भूमिहीन है उनका क्या होगा। तो बिहार में तो लोगों ने माओवादी संगठन और बना के लूट फूट करके ले लिया, छीन झपट लिया। सरकार भी मुख्य दर्शक बनी रही, वो जानबूझ के। उसे मालूम है कि ये तो हमारी ड्यूटी थी जो लोग खुदे कर लिए। क्लियर है? तो राइट टू प्रॉपर्टी कौन सा? हाँ, तुम बताओ ना, हमने तो भाषण दे ही दिया। खुद सोचो ना कि क्यों सफल नहीं हुआ। अभी तो बोल रहे थे हम, अभी हम बोले ना कि लैंड सीलिंग एक्ट क्यों नहीं सफल हो रहा है देश में। क्योंकि सरकार के पास उतनी फोर्स नहीं है कि आप पे गोली चला के छीन ले। सरकार जो है प्रयास बहुत की, लेकिन एक बल प्रयोग की लिमिट है ना। आप किसी को गोली नहीं मार देंगे ना। इट इज ए फेलियर ऑफ गवर्नमेंट एज वेल एज पब्लिक बोथ। जो सरकार नहीं की वो माओवादियों ने कर दिया ना, खुदे पुलिस बन गए लोग। अरे बिल्कुल करेंगे, वो तो रिकॉर्ड पे है। और क्या, माओवादी आप बिहार में रहती हैं फिर भी ऐसी बात पूछ रहे। माओवादी किसको बोलते हैं? वो बोल तो रहा है, किसको बोलते हैं? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। माओ तसे तुंग, क्या नाम था उसका? कार्ल मार्क्स का गुरु था या चेला था मुझे ध्यान नहीं है। मार्क्सिज्म जो पढ़ते हैं आप, उसी में लेनिन, हिगल, माओ तसे तुंग चाइना के थे। तो वही माओ तसे तुंग की थ्योरी थी कि संघर्ष करके आप जो है ले लेंगे। ठीक है ना, वर्ग संघर्ष। अभी पढ़ाया तो था साम्यवाद और समाजवाद। साम्यवाद कम्युनलिज्म पढ़ाया था ना, कम्युनिज्म नॉट कम्युनलिज्म। साम्यवाद और समाजवाद दोनों पढ़ाए थे, जिसमें बोला था कि समाजवाद में वर्ग संघर्ष नहीं है और उसमें हिंसा वर्ग संघर्ष है। भाई इतनी सी बात है। तो माओ तसे तुंग के फॉलोवरों ने माओवादी कहलाने लगे देश में, और वो जो है एक तरीके से उग्रपंथी समूह बन गया, एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप। बिहार में उसी को दबाने के लिए रणवीर सेना और सनलाइट सेना ये सब पैदा हुए। ठीक है, तो पूरे देश में कमोबेश लागू हुआ, कहीं नहीं हुआ, कहीं थोड़ा हुआ, कहीं ज़्यादा हुआ। तो इस तरीके से जो है ये लैंड सीलिंग एक्ट पे वर्तमान स्थिति ऐसे बनी हुई है। तो वो जो लोग आप कह रही हैं कि जिन्होंने जो है जमीनें नहीं दिया, हिंसा में तमाम लोग मारे गए। तो माओ तसे तुंग और नक्सलवाद ये सब एक ही चीज है। ये सब जो है देखा जाए तो सत्ता के
या पूंजीपतियों के विरुद्ध संघर्ष करने का एक समूह है, उसको चरमपंथी एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप कहते हैं, न कि आतंकवादी कहते हैं। आतंकवादी मत कहना है उनको, वो चरमपंथी हैं, एक्सट्रीमिस्ट हैं, उग्र हैं। तो सवाल ये, संपत्ति का अधिकार चला गया 300 कम है। उसके बाद एक एक्ट बना, दैट इज कॉल्ड लैंड एक्विजिशन एक्ट। क्या है ये? हमने बताया था 2013 में आया है लैंड एक्विजिशन एक्ट, 2013 या 2016 का है। क्या कहता है ये कहता है कि सरकार जो है आपकी जमीन ले सकती है, छीन नहीं सकती। पहले छीन लेती थी। उसमें क्राइटेरिया है कि आपको 6 गुना तक मुआवजा मिले। 100 रुपये की जमीन है, सरकार 600 तक दे सकती है, लेकिन जहां पटेगा वहां 200-300 का रेट होगा। ठीक है ना। दूसरा कि अगर आप नहीं देना चाहते हैं तो पूरे समाज में जो लोग की जमीन उसमें फंसी है, मान लीजिए 20 लोग की है, तो उसमें से 80% लोगों की सहमति अगर देने की है तो जमीन दी जाएगी सरकार। सहमति 80% से कम की है तो नहीं दी जाएगी। क्लियर है। इसी के तहत सरकार जो है 6 गुना तक मुआवजा देती है। यूपी में अखिलेश सरकार ने दिया था। 100 रुपये की जमीन है, अब मिल रहा है 500 रुपये, तो आप क्यों नहीं दीजिएगा? कहिएगा दे दो यार, उधर चौरा में खरीद लेंगे और ज़्यादा, है कि नहीं? इसलिए लोग देने लगे स्वेच्छा से। मार्केट वैल्यू 200 है, आपको मिल रहा है 800-1000 रुपये, तो नहीं बेचिएगा? मूर्खे होगा जो नहीं बेचेगा यार, क्योंकि उसी पैसे सब ज़्यादा जमीन कहीं और दूर खरीद लीजिए। तो लैंड एक्विजिशन एक्ट में पहला प्रोविजन क्या है कि 80% लोग अगर सहमत हैं तो दी जाएगी। दूसरा, मुआवजा 6 गुना तक हो सकता है। 6 गुना तक, नॉट 6 गुना, जहां तक पट जाए, 6 गुना जहां तक पट जाए। क्लियर है। तो संपत्ति का अधिकार क्लियर हो गया। कहां से गाड़ी खुली और कहां पहुंच गई, ये क्या है? सिर्फ राम कहानी ही तो है। इसमें कौन सा बुद्धि लगाना, आप बताइए। आपके गांव के लखू महरा या गोविंद जी, वो सब यही तो काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? और आपके पिताजी भी यही काम कर रहे हैं कमोबेश। क्या कांचा रजिस्ट्री जमीन का होता है, पक्का रजिस्ट्री? हाँ, तो कांचा रजिस्ट्री कुछ नहीं होता सब पक्का ही है। सिर्फ लोग क्या करते हैं कि नोटराइज करा के घर चले जाते हैं, उसको कह देते हैं कांचा रजिस्ट्री देसी भाषा में। और पक्का रजिस्ट्री मतलब जिसको सेल डीड और स्टैम्प पेपर दे करके उसको रजिस्ट्रार के यहाँ मुहर और उसके सिस्टम में दर्ज किया गया होगा, वो हो गया पक्का रजिस्ट्री। सरकार जब चाहे कांचा रजिस्ट्री वाली जमीन ले सकती है क्या? कच्चा रजिस्ट्री में देखिए ये है कि कच्चा रजिस्ट्री जो आप कह रहे हैं वो पहले ही कच्चा है। अब समझिए इस चीज को, वो कच्चा अभी बच्चा है। सरकार उल्टा केस ठोक देगी कि कृपया ये बताएं कि आपने हमारी सरकारी या इनकी जमीन पे कब्जा क्यों किया इतने साल से। इनक्रोचर है ना आप। सरकार कहेगी कि आप इनक्रोचर हैं, इनक्रोच किए हैं सरकारी जमीन को, आपको जेल भेज देगी उठा के। बेचना तो बहुत बाद की बात है, लेकिन ये सब कब होगा? जब सरकार चाहेगी तभी होगा ना, नहीं तो चुपचाप पर्दे के पीछे तो तमाम आपराधिक चीजें चल ही रही है, नहीं चल रही है देश में। आप यहाँ बैठे पढ़ रहे हैं, कोई उधर स्मगलिंग कर रहा होगा, कहीं पे ट्रैफिकिंग कर रहा होगा, कहीं पे चोरी कर रहा होगा, कहीं कोई बैठ के प्लान कर रहा होगा कि कल बैंक कैसे लूटेंगे। तो कच्चा रजिस्ट्री सरकार जो है ले सकती है, उल्टा आपको दंडित कर सकती है, क्योंकि आपकी नहीं है ना। वो तो कहेगी कितने साल से हो, कहेगा 20 साल, कहेगा 20 साल का इससे जो है रेवेन्यू वसूलो। जो चीज आपकी नहीं है और हमने पकड़ लिया कि ये तो मेरी है, तो आप क्या कहिएगा? हम कहेंगे ना भाई इसका कागज पत्र दिखाओ। जब आप नहीं दिखाएंगे तो हम ये मानेंगे ना कि आपका नहीं है। आप कहिएगा हमसे कि भाई आप ही दिखाइए आपकी कैसे है, तो कुछ हम कागज पत्र दिखा देंगे या सरकारी दस्तावेज का कुछ ले आके दिखा देंगे। तो कच्चा रजिस्ट्री हमेशा जो है कच्चा होता है, उसका कोई वैल्यू नहीं है। आपकी जानकारी के लिए, यस बिल्कुल।
और दूसरा जो चीज देखिए, 100 150 साल बाद भी मकान टूट जाते हैं अवैध। अब आप चिल्लाते रहिए, बनारस में बहुत लोग चिल्लाते रहे कि हमारे परदादा बनाए थे। एक 110 साल से रह रहा हूं, कच्चा था ना, कच्चा तेरा मकान है, कुछ तो लिहाज कर। एक शेर है ना इस पे, कैसे है, इन बारिशों से दोस्ती अच्छी नहीं फराज, इन बारिशों से दोस्ती अच्छी नहीं फराज, कच्चा तेरा मकान है, कुछ तो ख्याल कर। मतलब भैया तेरी जो रजिस्ट्री है वो कच्ची है, उनसे ज्यादा दोस्ती दुश्मनी मत निभाओ, क्योंकि तुम्हारी रजिस्ट्री कच्ची है। कुछ इसके बारे में सोचो कि अगर ज्यादा उछल कूद किए तो यहां से भी हाथ धो दोगे। तो कच्चा चीज हमेशा कच्चा होता है, और उसका कोर्ट ऑफ लॉ में 2 कौड़ी की वैल्यू नहीं होती। जैसे आपने जमीन जायदाद की बात किया, तो उसमें सेल डीड या जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने प्राप्त किया, अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है, स्टैंप ड्यूटी पे करके रजिस्टर्ड होना चाहिए रजिस्ट्रार ऑफिस में, जो पीसीएस अलाइड वाले लड़के बनते हैं, डिप्टी रजिस्ट्रार, तब तक जो है उसकी वैल्यू 0 है। और आप खुश क्या होते हैं, आप कितना खुश होते हैं कि हमारे पास नोटराइज्ड है, कच्चा रजिस्ट्री है, वगैरह वगैरह। हाँ बोलिए। हमारे जमीन को उस समय दे दी और आने। तो फिर सर रजिस्ट्री कैसे हुई, और बाद में उसका क्या मतलब ये है वो सेल वैसे ही करेगा जो बोल रहा है ना, कच्ची रजिस्ट्री। आप दोनों मिल गए, सेलर और बायर गए, 20 रुपया 100 रुपया का स्टैम्प पेपर लिए, उस पर लिखा पढ़ी कर लिए, और वकील के यहाँ गए। एक नोटराइज वकील होता है, सरकार उसको अपॉइंट कर देती है। आप कहिएगा ये जरा ठप्पा मार दो, तो देखेगा कि अच्छा 2 लोग हैं, कोई बहुत ज़्यादा इलीगल नहीं है, तो मार देगा कि हमारे सामने 2 लोगों की ये बात हुई थी, बस इतना ही है। कोर्ट में वो जब पेश करिएगा तो उठा के फेंक देगा जज, क्या भाई यहाँ से समझ गई। कोर्ट में वैल्यू नहीं है भाई, कोर्ट के अलावा रियल लाइफ में तो इसलिए है क्योंकि यहाँ तो सब चलता है ना, इस देश में तो सब चलता हूँ है, कोई सर्टिफिकेट की जरूरत कहाँ लोग पाते हैं। यहाँ तो बहुत सारी, अब शादी हो गई, 30 बरस हो गई शादी का, अभी तक शादी का पंजीकरण नहीं हुआ। अब आप सोचिए पूरी जिंदगी बीत गई ना लोगों की, बहुत सारी चीज़ें नहीं होती। वैसे ही इसकी भी वैल्यू कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं है। और आप जो पूछ रही हैं कैसे बिकता है, वैसे ही बिकता है जैसे वो लड़का बोल रहा अमित कि कच्ची रजिस्ट्री और पक्की रजिस्ट्री, तो कच्ची में कच्ची बिक जाती है। तुम भी खुद गर्ज, हम भी खुद गर्ज, चलो यार, क्यों। नहीं, उसमें कंडीशन है, वो सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट है, लेकिन वो वर्डिक्ट निर्णय जो है ऐसा नहीं है, आप कोई पुलिस वाला जाके उठा के उसको लागू नहीं कर सकता। उसमें सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश था कि 12 साल तक अगर आप बाधा रहित, विदाउट एनी इंटरप्शन उस जमीन पे कब्जा किए हुए हैं, और आप प्रूफ कर सकते हैं कि मैं 12 साल से हूं, तो वो जमीन जिसकी पहले थी उसका दावा कमजोर हो जाता है। दावा कमजोर हो जाता है, ध्यान देना। हाँ, दावा कमजोर होने का मतलब दावा समाप्त नहीं हो जाता, दावा कमजोर हो जाता है। कोर्ट में जाएगा, वो आपसे फाइट करेगा। जज साहब पूछेंगे कि 12 साल कहाँ थे तुम, कहेगा मैं विदेश में रहता हूँ, अब आया हूँ। तो कोर्ट में केस चलेगा, और जिनके कब्जा किए हुए हैं उनको वो हटा देगा कोर्ट ऑर्डर देके, मैं बता रहा हूँ। लेकिन उसके लिए आपको फाइट करना पड़ेगा। और सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि अगर ऐसी स्थिति है, कोई 12 साल से अवैध कब्जा किया है और आप असली मालिक हैं, तो अवैध कब्जाधारी को हटाने के लिए बल प्रयोग आप कर सकते हैं, ये डिसीजन है। वही जो बोला ना 141 कोर्ट ऑफ लॉ। और बाद में क्या हमने बोला कि उसको रेफरेंस के तौर पे यूज कर सकते, संदर्भ के तौर पे। तो आप कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है 12 साल से है तो है, मतलब मेरा दावा भी कमजोर नहीं है, अब केस कोर्ट केस लड़ेंगे तुमसे। तो वो कोर्ट में जाएगा मामला, जब कोर्ट में जाएगा तो क्या होगा,
ट्रायल चलेगा। जब ट्रायल में जो जीतेगा वो जीतेगा, जो हारेगा वो हारेगा, फिर अपील करेगा। तो मैं कहाँ था जब आप क्वेश्चन पूछी थी? नहीं नहीं, वहाँ नहीं थे, कहीं और थे जो बीच में, तो याद नहीं आ रहा कहाँ थे भाई। सूरज, याद है कुछ? तो कहने का मतलब आप समझ गए ना कि कैसे चीज़ें चलती हैं। तो कच्ची की बिक्री कच्ची में ही हो जाती है। हाँ हाँ हाँ, बल सरकार की तो सारी चीजें सारे लोग घर बना के रखे, शायद 50 साल 30 साल बाद सरकार बोलती है खाली करो तो मेरी जमीन मान लीजिए खाली पड़ी है, मेरी जमीन, मैं सरकार नहीं हूँ, मेरी है, हमने बाउंड्री करा के उसे रख दिया है। डज इट मीन कि आप आके कब्जा कर लेंगे? इसका मतलब ये तो नहीं है, ऐसा नहीं है ना। तो सरकार का कहना भी वही है कि हमारे पास संसाधन लिमिट है, इतने पुलिस फोर्स तो है नहीं कि हर सरकारी जमीन की रखवाली के लिए हम आदमी खड़ा कर दें। ये तो नेगेटिव पावर है आपकी खुद की, कि आपको किसी भी कृत्य को नहीं करना चाहिए हुसोवर इज इलीगल। ये तो आपसे अपेक्षा की जाती है ना, ड्यूटी है ना आपकी, फंडामेंटल ड्यूटी आ रहा है ना सामने। इट इज योर ड्यूटी दैट यू शुड नॉट इनक्रोच, you should not trespass any boundary or any land or anything यार। this is your legal duty ना। हमारी घड़ी अगर यहाँ छूट गई तो ये आपकी लीगल ड्यूटी क्या है कि इस घड़ी को ले जाके रिसेप्शन पे जमा कराने, न कि जेब में डाले चल दिए, है ना। रोड पे 1000 रुपया पड़ा है, उठाए समोसा खाए और चल भाई पार्क में घूमेंगे, ऐसा नहीं है ना। आपकी क्या ड्यूटी है कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो आप थाने में ले जाके उस चीज़ को जमा कराइए, ये आपकी लीगल ड्यूटी है। अगर आप नहीं किए तो कांड हुआ तो आप भी फंसेंगे। एरिया बंगाली बोलने आपको जब अगर वहाँ पे सैकड़ों घर बन चुके हैं तो फिर गवर्नमेंट क्या करे? सरकार, गवर्नमेंट का घर बन रहा है तो गवर्नमेंट कहती है ना कि हमारे पास इतने आदमी नहीं है, मैं कहाँ कहाँ करूँ, इतने मेरे पास रेवेन्यू नहीं है कि मैं 10 लाख पुलिस भर्ती कर लूँ, मेरे पास इतने तनख्वाह देने के लिए नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि मेरा घर है बेतिया में, घर में मेरे कोई नहीं रहता, डज इट मीन कि कोई आके कब्जा कर लेगा? अगर करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन आप ये तो नहीं कह सकते ना कि साहब आपने घर की रखवाली ठीक से नहीं की इसलिए कब्जा हो गया। जो कब्जा करेगा वो कानून का उल्लंघन कर रहा है, आप उसको गुंडा एक्ट में भी FIR करवा सकते हैं। लेकिन आप ये नहीं कह सकते ना कि वो भाई सरकार की गलती है कि वो देखभाल क्यों नहीं करती। अरे सरकार के रिसोर्सेज सीमित है। भारतीय रेल के पास 68,000 किलोमीटर की पटरी है, दोनों तरफ उसकी अपनी जमीन होती है लाइन के किनारे, बहुत ज़्यादा। अब आप बताइए कि वेदर इज इट पॉसिबल फॉर रेलवे टू प्रोटेक्ट ईच एंड एवरी लैंड ऑफ द पैरेलल ऑफ दैट ट्रैक? कर सकती है? कितना आदमी लगाएगी सोचिए ना। सरकार और स्टेट गवर्नमेंट कितनी फोर्स लगा के रखवाली कराएगी उसकी। बहुत सालों से बहुत साल से, और वहाँ पे 1-2 घर नहीं, सैकड़ों घर है, फिर उसको उसने क्या सरकार क्या वो पुनर्वास वाला के मामला है जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट देता है कि भाई मानवता के नाते इनको कहीं रीसेटलमेंट कर दो। बेचारे गरीब हैं, 100 साल से रह रहे हैं, 50 साल से रह रहे हैं, कच्ची बस्ती है, दिख रहा है कि ये सब कमज़ोर लोग हैं, ये मर जाएंगे। अगर धनी मनी का है तो कंपनसेशन देने की बात नहीं होती। लेकिन पुनर्वास एक्ट है ना, रिहेबिलिटेशन एंड R&R करके रीसेटलमेंट, हाँ हाँ, तो उसमें एक प्रोविजन है। और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट भी कहेगा ही, या आप भी कहेंगे ही, अरे यार गरीब गुरबा थे, अब इनको भगा रहे हो तो कहीं सेटल करा दो, कहीं दूसरी जगह जमीन इनको दे दो, वहाँ चले जाओ। ये करती है सरकार। हाँ, फ्री में मिलती है।
लेकिन उसमें भी लफड़ा है, उसको कब्जा दे दिया फ्री में, वो 2 साल बाद बेच के चलता बनता है कच्ची रजिस्ट्री करके। ऐसे बहुत हैं। हरिद्वार में टिहरी डैम जब बना था वहाँ ऊपर, तो टिहरी विस्थापित कॉलोनी बनी हरिद्वार में, और आज की डेट में एक भी आदमी वो विस्थापित वाले नहीं है, सबने कच्ची रजिस्ट्री कर करके बेच के कहाँ चले गए भगवान जान। अब बताइए, आदमी दुष्ट है ना, आदमी दुष्ट है। सरकार ने रिहेबिलिटेट किया, वो भाग लिया। अरे भैया यहाँ पे एक कॉलोनी है, नाम मैं इस पे नहीं बताऊंगा, उसमें बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट, मंत्री संतरी, सुप्रीम कोर्ट सब भरे हुए हैं। टोटल इलीगल है, उसकी कच्ची रजिस्ट्री होती है। अब 5 करोड़ 10 करोड़ के घर हैं, नॉट 5 लाख के। पूरे दिल्ली में 63 अवैध बस्तियां हैं, दिल्ली में 63, एक नहीं। कुछ को तो प्रधानमंत्री ने 2 साल पहले रेगुलराइज भी किया। तो ये क्वेश्चन बनेगा कि भारत में अवैध कब्जाधारी अभिकरण एजेंट्स की भूमिका क्यों इतनी सक्रिय और सुदृढ़ होती जा रही है, तो क्वेश्चन बन जाएगा। क्या आप समझते हैं कि अवैध कब्जाधारियों को बिना पुनर्विस्थापित और बिना रिसेटलमेंट किए उनसे जमीन का हक छीन लेना न्यायोचित है? ये क्वेश्चन बनेगा। क्या माओवादी संगठनों का उभर